Hey, hi, friends. Good evening. I'm sure you all had a wonderful week again last week. So हमने सारे के सारे levels जो हमने आपको last week दिए थे, we have achieved all those levels, right? So Nifty का final target for the last week हमने बताया था आपको. Of course, this level was valid till the 28th of June, but already हमने जो final target था of 16,780, we sort of achieved it, right? Nifty का high I think was around it was around 16,752, right? So ये सारे के सारे levels हमारे almost last Friday को ही आ गए, including Bank Nifty. I think Bank Nifty was around 36,000 700 के आसपास था Bank Nifty का targets. I think we've अपना high जो था, yes, our high in Bank Nifty was 36,823. So Bank Nifty ने भी अपना सारा levels achieve कर लिया, Nifty ने भी अपना सारा levels achieve कर लिया. Great. So I'm sure आप सब wait करते हो इस वीडियो के लिए. We received a lot of comments on our Telegram channel regarding these levels. ये सारे के सारे levels, I'm sure all of you wait for them. So we are here with another set of numbers, right? ठीक है. So now let's look at Nifty and Bank Nifty. Currently, Nifty ka spot, the closing is at around 16,719. Bank Nifty ka spot is at 36,739. ठीक है. So let's look at Nifty numbers. ठीक है. Nifty 16,780 was last week ka profit booking level. So Nifty ने high बनाया था around 16,750. Now let's look at this week. Let's look at the next levels that are valid. These are also valid till the 28th of July 2022. ठीक है, देखते हैं. Now Nifty जब तक 16,748 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, आपको बाई नहीं करना है. 16,748 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, then the next bull level is 16,812. The targets will be 16,840, 16,910 and 17,040. ठीक है. लास्ट वीक के जो हाई है, क्लोजिंग में जो हाई बनाया था निफ्टी, that was around 16,750 odd levels. So technically 16,750 तो ये मैच भी करता है हमारा बेयर लेवल के साथ. So technically जब तक निफ्टी 16,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, आपको बाई में नहीं बैठना है. ठीक है. अगर सस्टेन करेगा, so these are the levels. अभी bearish levels क्या क्या है? अगर 16,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, then the levels to the downward side, अगर 16,748 को breach करेगा, then the levels on the downward side are 16,715, 16,650 and 16,520. Okay, so these are the levels for Nifty. Draw करिए आप अपने charts में, levels को mark करके रखिए, so that it's easier for you to identify these numbers in live market. All right, now let's look at Bank Nifty. Okay, so Bank Nifty का जो high था, that was around 36,823. ठीक है, great. Now हमारे last week के जो targets थे, that was 36,790. Okay. Now today Bank Nifty ने close कहाँ किया? 36,739. Bank Nifty का close है 36,739. Okay. जब तक Bank Nifty 36,690 के नीचे सस्टेन करेगा, तब तक ये सारे आपके bearish levels होंगे, ये सारे आपके targets होंगे in Bank Nifty. Okay, great. Now Bank Nifty bullish कब होगा? Bank Nifty is bullish only if it sustains above its high. हाई कितना था? 36,823. अगर लास्ट वीक के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी बुलिश ट्रेड बनेगा. बैंक निफ्टी का बुल लेवल इज 36,880 के ऊपर, एंड देन दीज आर द टारगेट्स फॉर बैंक निफ्टी. ठीक है, ये भी लेवल्स आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए. दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू लाइव ट्रेडिंग में. इट विल हेल्प यू. ठीक है, ग्रेट. नाउ हम लोग एज यूजुअल वी ऑल्सो लुक एट टेक्निकल लेवल्स. ऑप्शन चेन के हिसाब से जो लेवल्स होते हैं हम वो भी देखते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से ये हफ्ते का, दिस इज ऑल्सो वैलिड टिल दिस करंट एक्सपायरी, जो अपना मंथली एक्सपायरी भी है, राइट. सो ऑप्शन चेन के हिसाब से अपना करंट एक्सपायरी के हिसाब से 16,953 इज द सेल लेवल. तो ये नहीं कह रही हूं मैं आपको कि 16,953 आपको आ जाएगा स्क्रीन में. मैं ये कह रही हूं कि अगर 16,953 आया आपके स्क्रीन में, दीज आर ऑल स्पॉट लेवल्स.
you can take a small stop loss, आप define कर लो, and then you can go in for a positional sell. Similarly 16,546 या 540 के आसपास निफ्टी आता है, then you can define a small stop loss and go in for a positional buy. अभी ये levels आप देखिए, आप उसको इस लेवल के साथ अगर मैच करना चाहो, 16,950 is our profit booking level, 16,953 is our sell level. So this also matches with our positional, this also matches with our GAN Astro levels and the technical levels, इसके साथ भी मैच होता है, ठीक है. So ये जो GAN and Astro के जो levels है, ये technical levels के साथ भी in terms of Nifty match कर गए. Now 16,546, this also is our final, profit booking level for Bank Nifty. At the lower side, अगर आप sell side में हो, 16,520 is your profit booking level. यहाँ पे जो buy level आ रही है, that is 16,546. So this also matches. Mark करके रखिए ये levels, very important. Buy आया तो you can take you can define a small stop loss and go for buy. Sell आया तो you can define a small stop loss and go for a sell. Okay, great. Let's look at Bank Nifty numbers. 37,385 is the sell level. अगर आप यहाँ पे देखोगे, so 36,360 is the bull, profit booking level. This is also matching with the sell level for Bank Nifty. So याद रखिए, this becomes your very important level. ये level आपकी screen में दिखा, तो you can take a, define a small stop loss and go in for a sell in Bank Nifty. Similarly, buy कहाँ पे आएगा in Bank Nifty? Buy will be around 36,100. So if you look at these levels, 36,020, 36,200 is also your profit booking levels in Bank Nifty. So your Astro GAN levels also match with your technical levels. So ये जो levels मैंने आपको दिखाए हैं, these become very very important. इसको मार्क करके रखिए, आपको रिवर्सल ट्रेड्स यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है. ग्रेट. तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के एस्ट्रोगैन लेवल्स एंड टेक्निकल लेवल्स के साथ हम जो मैच करके आपको लेवल्स डिफाइन करते हैं, राइट. नाउ लेट्स गो टू द चार्ट. अभी आप प्लीज, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक हमारे जो चैनल में जुड़े हैं मनीषा आप्ते जी. I would like to thank her because we have a lot of discussions and a lot of areas of the market. We discuss about index, we discuss about some stocks. So both of us also do harmonics, right? So हमारी एक harmonics के discussion में we discuss something about Heikin Ashi, and that is when I realized that there was a very very wonderful technique in Heikin Ashi that I used to use when I was a beginner, to identify a few trends. Now बहुत सारे लोग हमारे चैनल में ये पूछते हैं कि आप how do we decide हमको buy करना चाहिए, हमको sell करना चाहिए, हम वो चीज कैसे define कर पाएंगे, right? Lot of people have this doubts. Now जब मैं beginner थी, when I was a beginner, I used to combine price action with Heikin Ashi candles and I used to take a confirmation. Now जो लोग उसके बाद over the years, when I started having multiple confirmations, I started getting a little more comfortable with candlestick patterns and price action. मैं थोड़े और comfortable होने लगी. So then I sort of removed and moved out of Heikin Ashi and started using pure price action, right? Now this specific trick is for all those people who have difficulty to identify कि trend change हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो उसके लिए I am going to give you a wonderful trick. आप क्या करोगे आपके चार्ट में? Change it to Heikin Ashi. Okay? जब आप Heikin Ashi में चेंज कर दोगे, आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिखेगा आपके चार्ट में. ये देखिए, नॉर्मल में आपको यहाँ गैप्स दिख रहे हैं, यहाँ गैप्स दिख रहा है, डोजी बना हुआ दिख रहा है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बीच में बहुत सारे रेड कैंडल्स है, देन ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, हियर आल्सो इफ यू सी, बीच में रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स. आपको ऐसे एक यू कीप वंडरिंग मैं बाय करूं, सेल करूं, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, राइट? तो आप अपने चार्ट में सिंपली इसको जाकर के Heikin Ashi कर दीजिए. तो जब आप Heikin Ashi कर दोगे, there is nothing, it will only be one color candle for a very long time, या फिर it will give you a clear indication. Now how do you trade based on Heikin Ashi? Okay, let me explain it to you. Listen clearly. Okay, आपको क्या करना है, जब आपका कोई भी ट्रेंड अगर चेंज कर रहा है, तो what are the two things that you will have to look for in an Heikin Ashi candle? One, ये जो नॉर्मल कैंडल्स देखिए, जब ट्रेंड वन साइडेड रहता है, नॉर्मल कैंडल्स अगर बुलिश है, ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू हाई, देयर इज नो विक. अगर सेल ट्रेंड में है, ये देखिए, ओपन इक्वल्स टू, सॉरी, दीज आर ऑल ओपन इक्वल्स टू लो,
बाई ट्रेंड में दे आर ऑल ओपन इक्वल्स टू लो, सेल में देखिए दे आर ऑल ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू हाई, दे आर ऑल इन ओपन इक्वल्स टू हाई, बाई में दे आर ऑल इन ओपन इक्वल्स टू लो, ठीक है, ग्रेट। सो अगर ट्रेंड चेंज कर रहा है तो ऐसे आपको विक्स दिखना शुरू कर देगा, राइट? ये देखिए, लेट मी मार्क इट, ये देखिए ऐसे आपको विक्स दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एक कैंडल देखिए जिसमें दोनों साइड विक्स है, ये कैंडल देखिए जिसमें विक्स है, ये कैंडल देखिए जिसमें विक्स है। बट हाइकेनाशी कैंडल्स, ट्रेंड डिफाइनिंग कैंडल्स अगर है तो उसमें देयर इज नो एक ही साइड का विक है। अगर बुलिश है तो ओपन इक्वल्स टू लो रहेगा, बेरिश है तो ओपन इक्वल्स टू हाई रहेगा, देयर इज नो विक्स, ओके। वैसे ही सिमिलरली अगर आप यहां देखोगे, ये देखिए, ओके, ये देखिए यहां पे भी सिमिलरली, ये देखिए यहां पे भी आपको विक्स बने हुए हैं, राइट? ये विक्स है लाइक दिस। तो आपको क्या देखना है, जब भी कोई ट्रेंड अगर चेंज कर रहा है, जब भी कोई ट्रेंड अगर यू नो इट्स मूविंग, इट्स चेंजिंग इनटू अ डिफरेंट बाय और सेल, अगर आप प्राइस एक्शन से इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, जहां पे भी ये चेंज हो रही है यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट दैट। तो लेट्स लुक एट सेल, ओके। जैसे ये चेंज हो गया, द नेक्स्ट कैंडल आपको ओपन इक्वल्स टू हाई आना चाहिए। ये अभी तक ग्रीन था, आप ट्रेंड में थे, अभी तक ग्रीन था, ओपन इक्वल्स टू लो ही आ रहा था आपको, राइट? आप ट्रेल करते जाओगे, जैसे यहाँ पे विक्स बन गए और कैंडल थोड़ा सा आपको है ना ऊपर नीचे दिखने लगा, देन यू वेट, ठीक है, क्या, टू सी वेदर द ट्रेंड इज रिवर्सिंग। नाउ हाउ विल यू नो वेदर द ट्रेंड इज रिवर्सिंग? ये तो हो गया, ऐसे ऊपर विक्स बन गए, अगर रेड बन रहा है तो ओपन इक्वल्स टू हाई आना चाहिए, तो ये आ गया ओपन इक्वल्स टू हाई, तो तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ओपन इक्वल्स टू हाई बन गया और ये लो को जैसे नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगा, देन ओनली यू गेट अ ट्रेड टू टेक। तो ये कैंडल ने लो तोड़ा नहीं है, तो ये आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, इट कंटिन्यूज, अगेन इट कंटिन्यूज टू गो अपवर्ड, ओके। सो ऐसे करके आप अपना ट्रेंड को डिफाइन करोगे। सिमिलरली अगर ये देखिए, टू टेक एन एग्जांपल दैट यहाँ पे आपका द ट्रेंड डिडंट चेंज, तो यू डोंट गेट इनटू अ थिंक कि मुझे यहां जाके सेल करना है, आप सेल नहीं करोगे बिकॉज यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज नहीं किया, राइट? ये लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ देखिए ऊपर चलता गया, आपका यहाँ पे थोड़ा विपसॉस थे, इंडिकेशंस दिए थे दैट दे आर दोनों साइड के आपको विक्स मिल गए, ठीक है। बट उसके बाद देयर वाज नो रेड कैंडल, सो यू नो दैट यहाँ पे आपको कोई सेल नहीं लेना, आप बस ट्रेल करते रहो, राइट? आप ये या तो ये कैंडल के लो पे ट्रेल करो, या फिर आप अपना स्टॉप लॉसेस आपके हिसाब से ट्रेल करो, या फिर ये लो के हिसाब से ट्रेल करो। तो ये यहाँ पे कुछ आपका मूव नहीं आया है, उसके बाद वापस इट वेंट अप। यहाँ देखिए ये जो कैंडल था ये भी ओपन इक्वल्स टू लो था, बट यहाँ तुरंत आपको ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल बन गए। देन यहाँ पे आपको एक एक डोजी टाइप का कैंडल बन गया जहां दोनों साइड में आपका विक्स बन गए, ठीक है। देन यू अगेन गॉट एन ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल। नाउ इस ओपन इक्वल टू हाई को जैसे तोड़ेगा मार्केट, आपका एंट्री वहां होगा। नाउ इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उस दिन का हाई ले लीजिए, या फिर आपको जो भी ट्रेलिंग सिस्टम यूज करना है वो लगा करके हाई रखिए, राइट? पर ये आपका एंट्री लेवल होगा। उसके बाद देखिए आपने ये पूरा राइड लिया। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये ठीक है, यहाँ पे ये बना, ये ओपन इक्वल्स टू लो था, ये कैंडल का लो जैसे इसने ब्रेक नहीं किया, आपका एंट्री यहाँ लिया नहीं आपने। उसके बाद तुरंत आपको एक कैंडल बन गया, ये एक ओपन इक्वल्स टू लो बना था, okay, these were open equals to high, sorry for missing it, these are open equals to high, okay, red open equals to high, green open equals to low। ये देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना बिकॉज ये लो को उसने तोड़ा नहीं है, ओके, यहाँ आपको ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे देखिए जैसे उसने ये हाई को तोड़ा, आपका ट्रेंड शुरू हो गया और आप ये पूरा ट्रेंड को राइड करते हो। नाउ क्या करता है आपको हाइकेनाशी कैंडल्स, ओके, यहाँ के लो आई थिंक इट इज ब्रोकन, बट आपका स्टॉप लॉस अगर तुरंत आप चेंज कर दोगे बिकॉज यू इमीडिएटली गॉट एन ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल, तो आप अपना या तो ये स्टॉप लॉस से ट्रेल करोगे या फिर आप यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक करके यू विल वेट फॉर अ कंटिन्यूएशन टू हैपन। यू कैन डू बोथ, व्हाटएवर सूट्स यू बेस्ट। सो ये लो एक्चुअली इट हैज ब्रोकन, राइट? लो वाज 33,773 एंड हियर इट इज 757। तो ये ब्रेक हुआ था तो आपने यहाँ ट्रेड लिया, बट आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तुरंत नेक्स्ट कैंडल आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ अगर आपने तुरंत नेक्स्ट कैंडल
ओपन इक्वल्स टू लो बना था, तो ऑब्वियसली आप यहाँ या तो यहाँ कट करोगे अपना स्टॉप लॉसेस, या फिर तुरंत जब इस लो के हाई के ऊपर चला गया आप ये रिवर्स कर दोगे अपना ट्रेड। तो एक चीज ध्यान रखिए ट्रेडिंग में, आप हमेशा 100% राइट रहना है जरूरी नहीं है, बट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि जहां आपको दिख रहा है कि इट इज मूविंग अगेंस्ट यू, नेक्स्ट ट्रेड सेटअप अगर आपके ऑपोजिट मिल रहा है, रिजिड मत रहिए, तुरंत अपना रिवर्स कर दीजिए ट्रेड को। सो अगर आप रिवर्स करोगे विथ ऑफ कोर्स ऑल योर रूल्स, राइट, आपका रूल्स के हिसाब से, यहाँ अपना रूल क्या था, ओपन इक्वल्स टू लो, नेक्स्ट कैंडल आना चाहिए, उसका हाई ब्रेक कर देना चाहिए, तो आपका ऑलरेडी ये लॉस से भी ज्यादा आपने इस हाई में आपने कमा लिया है, राइट। तो योर डिसिप्लिन एंड योर strategy is something that you should stick to, then you will not make losses in the market. Okay, तो थैंक यू मनीषा जी, आपने ये याद दिलाया मुझे, बिकॉज ऑफ विच मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर न्यू, जिनको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे लेना है, पीपल कीप आस्किंग कैसे ट्रेड करना है, कैसे लेना है, बिकॉज वी डिस्कस दिस, मुझे ये एकदम से याद में याद आया, एंड आई थॉट आई शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, सो ऐसे करके आप अपना लेवल्स मार्क करके उसमें देख लीजिए क्या हो रहा है। इफ यू आर अनेबल टू ट्रेड बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैंडल स्टिक, आप अगर अपने नॉर्मल कैंडल स्टिक में आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है, आप हाइकेनाशी में अपना प्राइस एक्शन देख लीजिए एंड देन ट्रेड बेस्ड ऑन हाइकेनाशी। ओके, ठीक है, सो द लेवल्स, मार्क them in your chart. For all those of you who are new, follow Heikinashi, and if you're able to understand, and if you're able to take profitable trades, please do give us a thumbs up. And if you like this video and if you find it useful, आपको एक नया strategy सीखने को मिला, आपको सारे के सारे levels मिल गए हैं, please give us a like and comment करिए। if you have any doubts, we are ready to help you out। ठीक है, have a wonderful trading session, be very profitable। I hope you are able to earn based on these levels। Thank you so much. Keep watching. Take care. Bye.